السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد، میں ہوں نازیہ کمل۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ سپورٹس بلیٹن میں بات کریں گے پاکستان سری لنکا ٹیسٹ سیریز کے حوالے سے۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی، اور ابھی رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ اسلام آباد میں قومی آئی ٹی سیمینار، مقصد آئی ٹی کی ترقی کے لیے سازگار ماحول کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ مقصد کے حصول میں تمام فریقوں کی کاوشوں کو یکجا کرنا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سیمینار میں انفارمیشن ٹیکنالوجی سے متعلق منصوبوں کا اجرا کریں گے۔ سیمینار میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اعزازی مہمان ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے چیئرمین بلوچستان نیشنل پارٹی سردار اختر مینگل کی ملاقات۔ بلوچستان میں جاری ترقیاتی منصوبوں اور امن و امان کی صورتحال پر بات چیت۔ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی مشاورت۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے یوکرین کے وزیر خارجہ کی ملاقات۔ جنوبی ایشیا اور یوریشیا خطوں میں سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر بھی گفتگو۔ دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کا عزم۔ روس یوکرین جنگ نے عالمی معیشت پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ تنازع کو مذاکرات اور سفارتکاری سے حل کرنے کی ضرورت ہے، وزیر اعظم کی گفتگو۔ پاکستان اور یوکرین کا تجارت، سرمایہ کاری، زراعت، صنعت اور خدمات سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر اتفاق۔ یوکرین کے ساتھ دو طرفہ تعلقات اور تجارت بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے۔ روس یوکرین تنازع بات چیت کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی یوکرینی ہم منصب کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی صدارت میں اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے مجموعی طور پر 42.5 ارب روپے کی تکنیکی ضمنی گرانٹ کی منظوری۔ الیکشن کمیشن کو ابتدائی طور پر انتخابات کی تیاریوں کے لیے 10 ارب روپے دیے جائیں گے۔ فنڈز کی فراہمی کی حتمی منظوری وفاقی کابینہ دے گی۔ سابق وزیر اعظم نے قومی سلامتی کو پس پشت ڈال کر سائفر کو سیاسی مفاد کے لیے استعمال کیا۔ غیر قانونی طور پر سائفر کو اپنی تحویل میں لیا اور واپس نہیں کیا۔ معاملہ زیر تفتیش ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو 25 جولائی کو ایف آئی اے نے طلب کیا ہے۔ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ تحقیقات اور تفتیش میرٹ پر ہوگی۔ چیئرمین پی ٹی آئی امتناع کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے رہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی نیوز کانفرنس۔ سپریم کورٹ نے چیئرمین تحریک انصاف کو 24 جولائی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کوئٹہ میں وکیل کے قتل سے متعلق معاملے کی سماعت کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے کیس کی کارروائی روکنے کی استدعا مسترد۔ ریلیف لینے کے لیے درخواست گزار کو ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر سرنڈر کرنا ہوگا۔ توشہ خانہ فوجداری کیس میں الیکشن کمیشن کے دونوں گواہوں کے بیان قلم بند۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے 2018-19 میں 2 کروڑ 15 لاکھ روپے کے 4 تحائف لیے، 58 ملین میں فروخت کر دیے۔ تحائف کا تخمینہ 107 ملین روپے تھا۔ ملزم نے الیکشن کمیشن میں جھوٹا بیان جمع کرایا۔ گواہان کے بیان جرح کل ہوگی۔ محمد شہباز شریف اور حمزہ شہباز منی لانڈرنگ کیس میں بھی سرخرو۔ تمام ملزمان بری۔ لاہور کی احتساب عدالت کا بریت کی درخواست پر فیصلہ۔ عدالت نے شہباز شریف، حمزہ شہباز اور سلمان شہباز سمیت تمام افراد کی جائیدادیں منجمد کرنے کے احکامات بھی منسوخ کر دیے۔ ضلع خیبر کے بڑا بازار کے تحصیل کمپاؤنڈ میں سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی۔ دہشت گردوں کا حملہ پسپا ڈیوٹی پر موجود اہلکاروں نے ایک حملہ آور کو زخمی کر دیا۔
दूसरे दहशतगर्द ने दाखिले में नाकामी पर खुद को उड़ा लिया। वाक़े में 3 अहलकार शहीद, 8 जख्मी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की धमाके की शदीद मसम्मत। पुलिस लाइन्स में सरकारी एजाज़ के साथ शहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। बारह अगस्त को मुद्दत मुकम्मल होने पर असेंबली तहलील हुई तो अक्टूबर में इलेक्शन करा देंगे। इलेक्शन के लिए वाटर मार्क पेपर हासिल कर लिए, तैयारियां मुकम्मल हैं। तमाम इदारों से राब्ता है। DRO और RO के लिए अदलिया से रुजू किया है। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जफर इकबाल। चीन के ताउन से तैयार करदा मजीद 2 अल्फा फ्रिगेट्स PNS शाहजहान और PNS टीपू सुल्तान की बहरी बेड़े में शमूलियत। दोनों जहाज जदीद हथियारों और सेंसर से लैस हैं। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने जहाज़ों की कमांड ट्रूस्ट कमांडर के हवाले की। फ्रिगेट्स की शमूलियत से समंदरी हदूद का दिफा मजीद मजबूत होगा। सैलाब से मुतासरा बेघर अफराद के लिए नए घरों की तामीर के वादे की तकमील। सिंध हुकूमत का सबसे बड़े बहाली मंसूबे सिंध पीपल्स हाउसिंग का आगाज। 50,000 अफराद को माली मुआवनत की पहली किस्त की अदायगी। 5,000 मुतासरीन को जमीनों के मालिकाना हुकूक दिए जा रहे हैं। मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक का विषय जारी रखेंगे। वफाकी वजीर शहरी रहमान। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की 11 साला बेटी रजिया सुल्ताना का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इजलास से खुसूसी खिताब। यासीन मलिक मज़ाहमत की अलामत हैं और आज़ादी कश्मीर के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। भारतीय जेल में मेरे वालिद की जिंदगी को खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी इदारे नोटिस लें। वालिद को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी पर होगी। मकबूजा कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग और सैलाब के बायस 8 अफराद जाँ भग। भारतीय फोर्सेस ने मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों में 20 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। 10 लाख से ज्यादा भारतीय फौजियों की तैनाती ने वादी को एक बड़ी जेल में तब्दील कर दिया है। सिविल सोसाइटी के अरकान की श्रीनगर में मीडिया से बातचीत। मोदी सरकार में इंसानियत की तस्लील मामूल बन गई। भारतीय रियासत मणिपुर में 2 खवातीन को बरहना करके घुमाने की इंसानियत सोज वाक़े की वीडियो वायरल। भारत भर में वज़ीर आला बीरेन सिंह से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। अपोजिशन जमातों की मणिपुर की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की खामोशी पर भी शदीद तनकीद। नवाब ऑफ जूनागढ़ मोहम्मद जहांगीर खान जी कराची में इंतकाल कर गए। गुज़श्ता कई रोज से अस्पताल में जेरे इलाज थे। नवाब ऑफ जूनागढ़ ने हर फोरम पर पाकिस्तान से इल्हाक की बात की और भारत के जूनागढ़ स्टेट पर कब्जे के खिलाफ भरपूर जिद्दोजहद की। कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ बगदाद में एहतजाज। मुश्तइल मुजाहिरीन ने स्वीडन के सिफारत खाने को आग लगा दी। इराक का स्वीडन के सफीर को मुल्क बदर करने का ऐलान। इराकी वजीर आज़म की स्वीडिश सफीर को अपनी सरजमीन छोड़ने की हिदायत। In the first over, that's a good and not ball of the reverse sweep, and now the conventional sweep. एक साल बाद पाकिस्तान टेस्ट मैच जीतने में कामयाब। गाल टेस्ट में श्रीलंका को 4 विकेटों से शिकस्त। कौमी टीम ने 131 रन का हदफ 6 विकेट्स पर हासिल कर लिया। डबल सेंचुरी बनाने वाले सऊद शकील मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। दूसरा टेस्ट 24 जुलाई से कोलंबो में खेला जाएगा। सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। That's nicely done. Hand is off after it. Wilkinson's in the middle. Wilkinson! और फीफा विमेंस वर्ल्ड कप का आगाज। पहले रोज न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की कामयाबी। न्यूजीलैंड ने नॉर्वे को 1 गोल से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया की आयरलैंड के खिलाफ 1-0 से कामयाबी। इवेंट PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा।
क्राइटेरिया नहीं है एज का, जेंडर का, रीजन का, सिटी का. यू हैव टू बी यंग एट हार्ट एंड क्रिएटिव. Pakistan is what I think one thing that can catapult Pakistan out of national depression is what these startups are doing. So yeah, this is what I live for: startups and early stage businesses. So yeah, I couldn't be happier to be here. We're looking forward to the great solutions. Very resilient youth है हमारी, so quite excited. मैं ये सोच रहा हूँ कि पैसा ही पैसा हर तरफ हुआ है, तो कुछ मेरे से भी आ जाए, उसके लिए प्लानिंग चल रही है यहाँ पर. खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि बरामदात और सरमायाकारी में इजाफे के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रहे हैं. माशी बहाली के कौमी मंसूबे को तमाम स्टेक होल्डर्स की हिमायत हासिल है. इस पर अमल से मुल्क को खुशहाल बनाएंगे. ये बात उन्होंने इस्लामाबाद में कौमी IT सेमिनार से खिताब करते हुए कही. मज़ीद तफसील बताएंगे मज़हर अब्बास. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा कि माशी बहाली की कौमी हिकमत अमली के तहत रोजगार के मौक़ों और पैदावारी अमल में इजाफा तरजीह है. It is the whole of Pakistan strategy, which includes federal government and all provincial governments. And this mechanism has the following portfolios: A, agriculture; 2, IT; 3, mines and minerals; and 4, defense production. And of course, it goes without saying that all these initiatives will lead to our exports. It will be actually seriously a one-window operation where the whole of the government will be sitting there and providing facilities and support to all potential investors and stakeholders without any kind of delay. And no delay will be tolerated at any rate and at any cost. Jobs, production, revenues, exports, and prosperity and progress. This is the model and this is the crux of this new strategy. वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे. इस मकसद के लिए ख़ुसूसी सहूलत कौंसिल का क़याम भी अमल में लाया गया है. सरमायाकारों को सहूलतों की फराहमी और मसाइल के हल में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. Let us look at the bigger picture. Now to fill this gap and fill in the blank, what is actually required that Pakistan must and should achieve a target of $20 billion worth investment or $25 billion worth exports in the next 2-3 years. And I want to tell you, this is something doable. It's not something, it's difficult, but not impossible. And we have to achieve this target under all circumstances with your outstanding commitment, your support, your hard work, your knowledge, and your expertise. My investor is my master. For that, we will roll out red carpet for them and give them in a genuine and in a very sincere fashion all kinds of facilities and support which they require to build this sector in Pakistan. कौमी IT सेमिनार में IT माहिरीन ने अपनी तजावीज़ पेश की. मारूफ आलमी मैगजीन फोबिस में 5 पाकिस्तानियों को IT के शोबे में अहम खिदमात अंजाम देने के बायस जगह दी गई है. नेशनल IT सेमिनार का मकसद IT की तरक्की के लिए साजगार माहौल को फरोग देने के मुश्तरका मकसद के हसूल के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स की काविशों को यकजा करना है. सेमिनार इल्म पर मबनी मईशत की तश्कील और मुल्क की पायदार तरक्की को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा करेगा. IT इंडस्ट्री की बेपनाह सलाहियत, ऑटोमेशन, डिजिटलाइजेशन, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग और मसनूई जहानत के इंतजाम के जरिए दीगर सनतों को भी तकवीयत दे सकती है. मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद.
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की। उन्होंने बलूचिस्तान में जारी तरक्याती मंसूबों और अमन व अमान की सूरत हाल पर भी वज़ीर आज़म से तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस्लाहाती एजेंडे के नफाज में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के अहम किरदार को सराहते हुए मुल्क की बेहतरी के लिए हुकूमत के हर फैसले में हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि रूस यूक्रेन जंग ने आलमी मईशत पर गहरे असरात मुरतब किए हैं। तनाज़े को मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए हल करने की ज़रूरत है। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में पाकिस्तान के दौरे पर आए यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा विमित्रो कुलेबा से गुफ्तगू करते हुए कही। मुलाकात में जनूबी एशिया और यूरेशिया खित्तों में सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, तालीम और सकाफत के शोबों में ताउन पर भी गुफ्तगू हुई। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को जंग से पैदा शुदा सूरत हाल के बारे में ब्रीफ किया। पाकिस्तान और यूक्रेन ने तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, सनत और खिदमात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तिफ़ाक़ किया है। तफसील बता रहे हैं हसन तारिक भट्ट। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और यूक्रेन के वजीर खारजा डिमिट्रो कोलिबा की क़यादत में पाकिस्तान यूक्रेन मुज़ाकरात में इलाकाई और बैन अल-अक़वामी अमूर समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान यूक्रेन के साथ ताल्लुकात बढ़ाने का ख्वाह है। यूक्रेन में इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इज़हार करते हुए वजीर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान मुज़ाकरात के ज़रिए अमन के क़याम पर यकीन रखता है। We aspire to build a mutually beneficial relationship that contributes to the prosperity and well-being of our nations. The Ukrainian war has also brought difficulties for developing countries and the global south, particularly in terms of fuel, food and fertilizer shortages. Pakistan is no exception. We hope for a peaceful resolution through dialogue and diplomacy. यूक्रेन के वजीर खारजा डिमिट्रो कोलिबा ने कहा कि पाकिस्तान और यूक्रेन 30 साला ताल्लुकात ज़राअत, सनत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में ताउन पर मबनी हैं। पाकिस्तान ने भी मुश्किल वक्त में यूक्रेन को इंसानी इमदाद फ़राहम की है। My visit here is a sign of appreciation of bilateral relations that have existed between Ukraine and Pakistan for more than 30 years. We were discussing today how we can boost trade, solve existing problems for Pakistani students who had studied in Ukraine before the war began, and how we want to develop cooperation in this area. इससे कबल डिमिट्रो कोलिबा की वजारत खारजा आमद पर वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस्तकबाल किया। दोनों वज़राए खारजा ने वजारत खारजा में पौधा भी लगाया। यूक्रेन के वजीर खारजा का पाकिस्तान का पहला दौरा पाकिस्तान यूक्रेन ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने की जानिब अहम पेशरफ साबित होगा। हसन तारिक भट्ट, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार की सदारत में ACC का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए 42.5 अरब रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी दी गई। ये भी फैसला किया गया कि इलेक्शन कमीशन को इब्तदाई तौर पर इंतखाबात की तैयारियों के लिए 10 अरब रुपए दिए जाएंगे। ECC ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के लिए 20 करोड़ रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की भी मंजूरी दी। इजलास में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के जरिए अफगानिस्तान को ज़मीनी रास्ते से घी और कुकिंग ऑयल की बरामद करने की भी मंजूरी दी गई। ECC ने साल 2023-24 के लिए तंबाकू के नजरसानी शुदा सेस के शरा को भी मंजूर किया। सिनेमा घरों को माली तौर पर मुस्तहकम करने और पाकिस्तान में फिल्म कल्चर को बहाल करने के लिए ECC ने सनती नरखों के मुताबिक सिनेमा घरों को बिजली के नर्ख वसूल करने की मंजूरी दी। ये सहूलत सिर्फ उन सिनेमा घरों को दी जाएगी जो किसी भी कौमी या बैनुल अक़वामी रजिस्ट्रेशन एजेंसी के साथ रजिस्टर्ड हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद इसहाक डार की सदारत में हवाई अड्डों के ऑपरेशन की आउटसोर्सिंग पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए स्टीयरिंग कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास को हवाई अड्डों के ऑपरेशन की आउटसोर्सिंग से मुतालिक पेशरफ्त से आगाह किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि सर्विस की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए वजारत हवाबाजी को पहले हवाई अड्डे के तौर पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के लिए टेंडरिंग की इजाज़त दी जाए। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कौमी सलामती को पसे पुश डालकर साइफर का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। चेयरमैन PTI को 25 जुलाई को तफ्तीश के लिए बुलाया गया है। तहकीकात मेरिट पर होंगी, अदम ताउन पर गिरफ्तारी हो सकती है। तफसील जानते हैं राहील अंसार से।
اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر قانون نے کہا کہ سائفر کو چیئرمین پی ٹی آئی نے اپنی تحویل میں لیا اور کبھی واپس نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمان میں سائفر معاملے پر اس وقت کی حکومت نے عجیب و غریب موقف اپنایا۔ سابق وزیر قانون نے بھی سائفر معاملے کو اسمبلی فلور پر منفی انداز میں استعمال کیا۔ وزیر قانون نے کہا کہ سائفر اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے امتناع کے پیچھے چھپنے کی بھرپور کوشش کی۔ جو پرنسپل سیکرٹری ہیں اس وقت کے، ان کا بیان آیا جس نے تصدیق کر دی 164 کے بیان نے کہ اس ڈاکومنٹ کو انہوں نے کن مقاصد کے لیے ان سے حاصل کیا۔ اس سارے ڈرامہ اور اس کھیل کی وجہ سے جو پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، کس طرح سے ہمارے اس دوست ملک کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ متاثر ہوئے، اس کی وجہ سے ہمارے کئی ملٹی لیٹرل ایگریمنٹس اور اس سے جڑی ہوئی چیزیں کس طرح سے متاثر ہوئیں۔ کانفیڈنس لیول بحال کرنے میں کتنا ٹائم لگا اور اس عرصے میں اس ملک کے غریب عوام نے معاشی حوالوں سے کس قدر تکلیفیں برداشت کی۔ وزیر قانون نے کہا کہ آرمی ایکٹ کے تحت سیولینز کے ٹرائل گزشتہ 5 دہائیوں سے ہو رہے ہیں۔ آرمی ایکٹ 1952 میں 2D کے اندر یہ کہا گیا کہ جو کچھ تو جرائم الگ سے ہیں، لیکن اس کیس کے حوالے سے کہ اگر آپ جو عسکری تنصیبات ہیں اور وہ پروہیبٹڈ ایریاز اگر کوئی ٹریس پاس کرتا ہے اور پھر ایک کیٹیگری آف افینسز ہے وہ کرتے ہیں، تو اسی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت بھی وہ پروسیڈ ہوتے ہیں، ریڈ ود آرمی ایکٹ۔ ایک سوال کے جواب میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کی مدت پوری ہوتے ہی کابینہ تحلیل ہو جائے گی۔ نگران حکومت کی تشکیل تک وزیر اعظم کام کرتے رہیں گے۔ راہیل انصار، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ سپریم کورٹ نے کوئٹہ میں وکیل کے قتل سے متعلق معاملے میں چیئرمین تحریک انصاف کو 24 جولائی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ریلیف لینے کے لیے درخواست گزار کو ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر سرنڈر کرنا ہوتا ہے۔ عدالت نے پروسیکیوٹر جنرل بلوچستان کی استدعا منظور کرتے ہوئے فریقین کو جواب جمع کرانے کے لیے آئندہ سماعت تک مہلت دے دی۔ مقدمے کی آئندہ سماعت 24 جولائی کو ہوگی۔ توشہ خانہ فوجداری کیس میں الیکشن کمیشن کے دونوں گواہوں نے بیان مکمل قلم بند کرا دیے۔ جرح کل ہوگی۔ تفصیل بتائیں گے عمران منصف خان۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں چیئرمین پی ٹی آئی کی حاضری سے استثناء کی متعدد درخواستوں کے بعد بالآخر توشہ خانہ فوجداری کیس میں ہوئی بڑی پیش رفت۔ عدالت نے ایک ہی دن الیکشن کمیشن کے دونوں گواہوں کے بیانات مکمل قلم بند کر لیے۔ جج ہمایوں دلاور نے ملزم چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل خواجہ حارث کو پلیڈر مقرر کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ آج ملزم کو بلایا اس لیے تھا تاکہ مسئلہ حل ہو۔ 8 ماہ ہو گئے ہیں، ملزم ایک بار بھی عدالت کے روبرو پیش نہیں ہوا۔ عدالت کے پاس کوئی جواز ہی نہیں کہ حاضری سے استثناء منظور کرے۔ عدالتی حکم پر الیکشن کمیشن کے پہلے گواہ نے بتایا کہ الیکشن کمیشن نے کابینہ ڈویژن کے ذریعے توشہ خانہ اور اسٹیٹ بینک سے ملزم کا ریکارڈ منگوایا۔ گواہ کے مطابق ملزم چیئرمین پی ٹی آئی نے 2018-19 میں توشہ خانہ سے 2 کروڑ 15 لاکھ روپے کے 4 تحائف لیے، 58 ملین میں فروخت کر دیے، جو ریکارڈ کے مطابق ثابت بھی نہیں۔ تحائف کے خریدار کا نام اور رسید تک جمع نہیں کرائی گئی۔ الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گئے مالی سال 2019-20 کے ریکارڈ کے مطابق ملزم کا موقف تھا کہ اس نے 3 میجر تحائف لیے اور کسی کو گفٹ کر دیے۔ یہ نہیں بتایا کہ کسے گفٹ کیے، نہ مالیت لکھی، نہ فارم بھی پر کیا۔ ان حقائق کی روح سے ملزم نے الیکشن کمیشن میں جھوٹا بیان جمع کرایا۔ دوران سماعت خواجہ حارث کے اعتراضات کو بھی عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا۔ عدالت نے گواہوں کے بیانات پر دستخط لینے کے بعد سماعت کل صبح 9 بجے تک ملتوی کر دی۔ عمران منصف خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ لاہور کی احتساب عدالت نے آمدن سے زائد اثاثہ جات اور منی لانڈرنگ ریفرنس کا فیصلہ سناتے ہوئے محمد شہباز شریف، حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کو بری کر دیا۔ جج قمر الزمان نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے تمام ملزمان کو ناکافی شواہد کی بنا پر بری کیا۔ عدالت نے شہباز شریف، حمزہ شہباز اور سلمان شہباز سمیت تمام افراد کی جائیدادوں کو منجمد کرنے کے احکامات بھی منسوخ کر دیے۔ نیب نے اپنی ضمنی تفتیشی رپورٹ میں اعتراف کیا تھا کہ ملزمان کے خلاف تفتیش کے دوران کرپشن اور منی لانڈرنگ کے شواہد نہیں ملے۔ سیکیورٹی فورسز نے ضلع خیبر میں باڑہ تحصیل کمپاؤنڈ میں بروقت کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردی کا بڑا حملہ ناکام بنا دیا۔ اس واقعے میں 3 پولیس اہلکار شہید جبکہ 8 زخمی ہوئے ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں ساجد اختر۔ 2 حملہ آوروں نے ضلع خیبر میں بڑا تحصیل کمپاؤنڈ میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ ڈیوٹی پر موجود سپاہی نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے حملہ آوروں کو داخل ہونے سے روک دیا، جس پر دونوں دہشت گردوں نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ گران وزیر اعلیٰ محمد اعظم خان نے حیات آباد میڈیکل کمپلیکس پشاور کا دورہ کیا اور ضلع خیبر میں باڑہ بازار کے تحصیل کمپاؤنڈ دھماکے میں زخمی اہلکاروں کی عیادت کی۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ایسے واقعات کی روک تھام ہو سکے۔ یہ ایک بہت افسوسناک بات ہے جس کی ہم پوری طرح مذمت کرتے ہیں۔ ساری حکومت جو شہید ہوئے ہیں ان کے ساتھ انشاءاللہ ہم پوری طرح
इमदाद करेंगे, उनकी फैमिलीज़ के साथ उनको कंपनसेशन देंगे, उनको जो भी मदद चाहिए वो हम पूरी तरह देंगे उनको। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली ने भी हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स पेशावर का दौरा किया और जिला खैबर में बाड़ा बाजार के तहसील कंपाउंड धमाके में जख्मी एहलकारों की अयादत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर ने वाक़े पर दुख का इजहार करते हुए कहा कि शहदा के खानदान और जख्मियों की भरपूर मदद की जाएगी। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि कौम में जब यही इत्तेफाक होगा तमाम मकातब फ़िक्र में, तमाम इदारों में, तो वक्त दूर नहीं कि इंशाअल्लाह ताला हम इस मुल्क से इस नासूर का खात्मा करेंगे। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात गंडापुर ने हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में जख्मी एहलकारों की अयादत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बाड़ा तहसील कंपाउंड पर 2 अतराफ से हमला किया गया। इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर पुलिस अलर्ट थी, इसलिए हमले को नाकाम बनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बाड़ा धमाके की शदीद मजम्मत करते हुए शहीद पुलिस एहलकारों के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। उन्होंने जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। साजिद अख्तर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। जिला खैबर तहसील कंपाउंड थाना बाड़ा में खुदकुश हमले में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में IGP खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान गंडापुर, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र की शख्सियात और शहदा के लवाहिकीन समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर IG पुलिस और दीगर ने शहदा के जसद खाकी पर फूलों की चादरें चढ़ाईं और शहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। पेशावर के इलाके रेकी में पुलिस चेक पोस्ट पर हमले में शहीद 2 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन पेशावर में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली और IG अख्तर हयात समेत बड़ी तादाद में सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। पुलिस के चाको चबंद दस्ते ने सलामी पेश की और फूलों की चादर चढ़ाई। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने योब में दहशतगर्द हमले में शहीद होने वाले पाक फौज के जवानों के लवाहिकीन को टेलीफोन किया और शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। हवालदार मोहम्मद उस्मान, सूबेदार सिकंदर, नायब सूबेदार मुस्तफ़ा, लांस नाइक कुल हमीद और नायक जावेद शहजाद के लवाहिकीन से गुफ्तगू करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि मादरे वतन का दिफा करते हुए जाम शहादत नोश करने वाले नजर सबूत हमारे मोहसिन हैं। सिपाही मोहम्मद यूसुफ, फ़हीम और मकसूद के अहल खाना से गुफ्तगू में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि शहदा हमारा फ़ख्र हैं। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। नाज़रीन, तारीख़ गवाह है कि जब भी वतन की मिट्टी ने पुकारा, इसके बहादुर सपूतों ने जान की परवाह किए बगैर हमेशा लब्बैक कहा। सिपाही मीर अली बेबाक, निडर और वतन पर मर मिटने का अज़्म रखने वाले जांबाज मुजाहिद थे। उन्होंने वतन अजीज़ की खातिर शहादत को गले लगाया। तफसील बताएंगे अमजद अली खान। मीर अली ने सोगवाराम में बेवा, बेटी और 3 बेटे छोड़े हैं। सिपाही मीर अली शहीद के अहल खाना ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि मीर अली जब भी छुट्टी पर आते हंसी खुशी वक्त गुजारते। वो वतन की मोहब्बत के जज्बे से सरशार थे। बाबा इंदो छुट्टी ते असां बच्चन सां असां सां पाड़े सां खुशी सां इंदो, खुशी कंदो, खुश माण्हू हूंदो, असां सां प्यार कंदो, बच्चन सां प्यार कंदो, असां सां सुठो हलंदो, सुठो प्यार कंदो। वो ॾाढा सुख ॾींदो, दुख त कॾहिं बि न ॾिनो आहे, सभिनी खां वधीक बहुत ॾींदो हुयो। शहीद मीर अली का जवान बेटा अपने बाबा को बहुत याद करता है। बाबा ॾाढो सुठो इंसान हुयो, जेको छुट्टी ते ईंदो हुयो, असां सां प्यार मोहब्बत कंदो हुयो और चवंदो हुयो आर्मी जेको आहे ॾाढी सुठी आहे। सिपाही मीर अली शहीद वतन अजीज़ के दिफा की खातिर जान का नजराना पेश करके आने वाले नस्लों के लिए मशगल राह बन गए। अमजद अली खान, PTV न्यूज़, पेशावर। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद पर मुश्तमिल वफ़द ने जिना हाउस लाहौर का दौरा किया और 9 मई के वाक़े की शदीद मसम्मत की। तफसील अज़का मकसूद से। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद पर मुश्तमिल वफ़द ने जिना हाउस लाहौर का दौरा किया और 9 मई के वाक़यात की सख्त अल्फाज में मुज़म्मत करते हुए कहा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मंसूब नवादरात को तबाह करके कौमी असासे ज़ाया करने की शर्मनाक हरकत पर हर मुहिब वतन दुखी है। वफ़द के अरकान ने कहा कि पाक फौज की तनसीबात और शुहदाए वतन की यादगारों की बेहुरमती नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है। ये जो चीज़ें हैं ये हमारे मुल्क का असासा होती हैं। हम कुछ भी करें इन असासों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते।
सारी चीज़ होती है कंट्री की हेरिटेज। हम अपनी हेरिटेज को तबाह करने की किसी को इजाज़त नहीं दे सकते। मैं पुरजोर अपील करता हूँ, जो कानून के मुताबिक सज़ा बनती है उनको पूरी सज़ा मिले। वफ्द के शुरका ने पाक फौज को अपनी रेड लाइन करार देते हुए कहा कि वो पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। वफ्द ने मुतालबा किया कि कौमी मुजरिमों को करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा कोई शरपसंद ऐसी जुर्रत ना करे। अस्का मकसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। खित्ते की बदलती सूरत हाल के तनाजुर में पाक बहरिया की इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए इक़दाम जारी हैं। पाकिस्तान नेवी में टाइप 054 अल्फा फ्रिगेट्स PNS शाहजहां और PNS टीपू सुल्तान को शामिल किया गया है। इस सिलसिले में कराची में होने वाली तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ थे। कराची डाकयार्ड आमद पर नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने उनका इस्तकबाल किया। PNS शाहजहां टीपू सुल्तान जदीद तरीन हथियारों और सेंसर से लैस और कसीर खतरात के माहौल में ऑपरेशन करने की सलाहियत रखते हैं। अपने खिताब में वज़ीर दिफा ने समुद्री दिफा को यकीनी बनाने और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया की काविशों को सराहा। जियो स्ट्रेटजिक और जियो इकनॉमिक अहमियत पर जोर देते हुए ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि बहरी हदूद की हिफाजत के लिए ताकतवर नेवल फोर्स वक्त की ज़रूरत है। जदीद बहरी जहाज़ों की शमूलियत से पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों में नुमाया इजाफा होगा। उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहरी जहाज़ों की बरवक्त तामीर और तरसील पर हुडिंग रोड डिंगवा शिपयार्ड चीन का भी शुक्रिया अदा किया। नेवल चीफ एडमिरल अमजद न्याजी ने अपने खिताब में बहरी जहाज़ों की PNS फ्लीट में शमूलियत को अहम संग मील करार दिया। तकरीब में पाकिस्तान के सिविल अस्करी और हुकूमती नुमाइंदों समेत चीन के हुडोंग रोड डिंगवा शिपयार्ड के हुकाम ने शिरकत की। इलेक्शन कमीशन के स्पेशल सेक्रेटरी जफर इकबाल ने कहा है कि इलेक्शन के लिए वाटरमार्क पेपर ले लिया है। 12 अगस्त को मुद्दत मुकम्मल होने पर असेंबली तहलील हुई तो अक्टूबर में इलेक्शन करा देंगे। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्शन के लिए मुकम्मल तैयार हैं, तमाम इदारों से राबता है। DRO और RO के लिए अदलिया से रुजू किया है। वज़ीर तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान कहते हैं चेयरमैन PTI ने अवाम, हुकूमत और मुल्की मफाद के साथ खिलवाड़ और इदारों के तकद्दुस को पामाल किया। इस्लामाबाद में न्यूज़ ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि साइफर को मनफी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। झूठ की बुनियाद पर बनाई गई इमारत अब मुकम्मल तौर पर जमीन बोस हो चुकी। आप अवामी मफादात से भी खेल रहे हैं, आप कौमी मफादात से भी खेल रहे हैं, क्योंकि उस अमल से पाकिस्तान की खारजा ताल्लुकात को सख्त तरीन नुकसान पहुंचा और पूरी दुनिया को ये पैगाम गया कि किसी पाकिस्तानी सफारतकार से की गई कोई बात महफूज नहीं है, वो अगले दिन पाकिस्तान के अवामी जलसों में भी लहराई जा सकती है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए कानून का यकसा इत्तलाक ज़रूरी है। 9 मई को रियासत पर हमलावर होने वाले और साइफर की आड़ में मुल्क के खिलाफ साजिश के मरकजी किरदार को जल्द कटहरे में लाया जाए। रियासत पर हमलावर होता है, उसके खिलाफ साजिश करता है, उसके अदारों के अंदर बगावत के लिए उकसाता है, तो फिर आर्टिकल 6 क्यों नहीं लगता और क्यों नहीं लगना चाहिए? फिर मुझे ये बताएं, दहशतगर्द किसको कहते हैं? सिर्फ सरहद पार से जो आए वो आपकी तनसीबात पर हमला करे उसको सिर्फ दहशतगर्द कहोगे, या पाकिस्तान के अंदर से भी वही फेल कोई पाकिस्तानी करेगा तो उसको सियासतदान कहोगे? ये नहीं हो सकता। वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि चेयरमैन PTI खुफिया दस्तावेज साइफर के मामले में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए हैं। अपने आर्जी सियासी फायदे की खातिर मुल्क की सलामती और रियासत पाकिस्तान के मफादात को दांव पर लगाया। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कही, जिसकी तफसीर बताएंगे अरसलान असद। वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने बताया कि अहम हुकूमती ओहदे पर रहते हुए खुफिया दस्तावेज को आवाम के सामने लाने की सजा 17 साल कैद, जबकि खुफिया दस्तावेज को गुम करने की सजा 3 साल कैद है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI ने अपने जाती और सियासी मफादात की खातिर मुल्की कानून और आइन को दाव पर लगाया। जेब से पर्चा निकाला और हजारों लोगों के सामने लहराया, और लाखों लोग जो टेलीविजन की स्क्रीन देख रहे थे उनको ये कहा कि ये वो रियासत पाकिस्तान का सीक्रेट डॉक्यूमेंट है जिसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी हर शख्स पे है, वजीर आजम पे भी है, और ये वो डॉक्यूमेंट है जो मैं किसी को नहीं दिखा सकता, और अगर मैं ये डॉक्यूमेंट किसी और को दिखाऊं तो मुझ पे वो कानून नाफिज होता है सीक्रेट्स एक्ट का।
डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने पहले अमेरिका पर साजिश का इल्जाम आयद किया और उसके बाद अमेरिका अपने हक में लॉबिंग करने के लिए पाकिस्तान मुखालिफ डेविड फेंटन को लॉबियस्ट रखा। आपने वहां पे एक लॉबिस्ट रखा डेविड फेंटन के नाम से, किस मुल्क में, जिसके मुतालिक वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का वो आइन पामाल करता है, तो फिर लॉबिस्ट किस चीज की लॉबी कर रहे हैं? और वो क्या लॉबी कर रहा है? जिसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ पाकिस्तान की एटमी तंसीबात को खत्म करना है, वो वहां पे क्या लॉबी कर रहा है? डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम ने बड़ी मेहनत से IMF प्रोग्राम बहाल कराया और मईशत को बहाली की राह पर गामजन किया। अरसलान सदके खेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वजारत रेलवे ने मोहिंजोदड़ो एक्सप्रेस को बहाल कर दिया है। ML2 का ये हिस्सा बहाल होने से आवाम को सस्ती सवारी मैसर आएगी। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक कहते हैं महदूद वसाइल और मुश्किलात के बावजूद मुसाफिरों को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। वक़ार हैदर की रिपोर्ट। वजारत रेलवे ने मोहनजोदड़ो एक्सप्रेस को आज दोबारा शुरू कर दिया है। वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने वर्चुअल इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा, गुज़श्ता बरस शदीद बारिशों से बुनियादी ढांचा पूरी तरह मुतासिर हुआ, लेकिन रेलवे के अफसरान और मुलाजमीन ने दिन रात काम करके ट्रैक को बहाल किया है। हमें कोई फेडरल गवर्नमेंट से ग्रांट नहीं मिल सकी, उसके बावजूद रेलवेज ने अपने रेवेन्यू में से, यानी आप ये कहिए अपना पेट काट के, तो ये हमने इन सेक्शंस को बहाल किया। हम सब के लिए इस हवाले से ये बड़ा अहम दिन है कि खुदा का शुक्र है कि कोटरी और लाड़काना के इस सेक्शन पर ट्रेन की रौनक दोबारा बहाल हुई है। पाकिस्तान रेलवेज पूरी तरह कमिटेड है कि हम महदूद वसाइल और मुश्किलात के बावजूद जो हमारे पैसेंजर्स हैं उनको हम फैसिलिटेट करते रहेंगे। ये ट्रेन 10 बोगियों पर मुश्तमिल होगी और इसमें 870 मुसाफिर एक वक्त में सफर कर सकेंगे। ये ट्रेन कोटरी से सुबह 8:15 पर रवाना होगी। पटादो, आमरी, सहवन शरीफ, रहमानी नगर, मोहनजोदड़ो, लाड़काना और हबीब कोट से होती हुई सखर और रोहड़ी पहुंचेगी। वक़ार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मौसमियाती तब्दीली की वजीर सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि सिंध में सैलाब से मुतासरा बेघर अफराद के लिए नए घरों की तामीर का वादा मुकम्मल हो रहा है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि मुतासरा लोगों की बहाली और तबाहशुदा घरों की तामीर नौ के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में सिंध हुकूमत ने सबसे बड़े बहाली मनसूबे सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड इफेक्टीज का आगाज़ किया। अब तक 50,000 अफराद को माली मुआवनत की पहली किस्त फराहम की गई है। 5,000 मुतासरीन को ज़मीनों के मालिकाना हुकूक देने का आगाज़ भी हो चुका है। उन्होंने कहा कि सैलाब मुतासरा लोगों की मुकम्मल बहाली तक काविशों को जारी रखेंगे। मुशीर उमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में इजलास हुआ, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान की शाहराहों को महफूज बनाने, मोटरवे पुलिस की तैनाती, इंफ्रास्ट्रक्चर और मालियाती उमूर का जायजा लिया गया। कमर ज़मान कायरा ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान सियाहत के हवाले से इंतहाई अहम इलाका है। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर गिलगित बल्तिस्तान को सफ़र समेत हर लिहाज से महफूज बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि सियाहत को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ मिले। कमर ज़मान कायरा ने हसास मकामात पर हिफाजती दीवारों को मज़ीद मजबूत और वाज़ेह साइन बोर्ड्स आवेज़ा करने की भी हिदायत की। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा है कि हमने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए तालीमी शोबे में बेहतरी के लिए भरपूर इक़दाम किए हैं। चेयरमैन सेनेट ने इस्लामाबाद में एजुकेशन पार्लियामेंट्री कॉकस और जायका के ताउन से मुनक़िदा सेमिनार से खिताब किया। तफसील बताएंगी सदफ अफजल। सेमिनार से खिताब में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा कि तालीम के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि एजुकेशन पार्लियामेंट्री कॉकस का क़याम इसीलिए अमल में लाया गया कि हर बच्चे तक तालीम की रसाई को मुमकिन बनाना है। हमने कोशिश की कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के भी इस कॉकस में मेंबरान शामिल करें ताकि उनके यहाँ ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है तो उनको भी शामिल करें। आज उसकी पहली ये सीढ़ी है वो आपके सामने है, जिस पे हम इंशाल्लाह पहला कदम रखेंगे और आगे चढ़ने की कोशिश करेंगे। सेनेटर सना जमाली ने कहा कि तालीमी सेक्टर के मंसूबों को मौसर तरीके से नाफिज करने के लिए EPC सूबाई और कौमी सतह पर बैक वक्त काम करेगी। I am sure that Education Parliamentary Caucus is going to be genuine contributor in addressing these issues and create suitable conditions for human development. जायका के अकल प्रोजेक्ट की चीफ एडवाइजर चीहू ओबाशी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए एजुकेशन पार्लियामेंट्री कॉकस को भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर राजा परवेज अशरफ की सदारत में जारी है। इजलास में इजहार ख्याल करते हुए इंसानी हकूक़ के वफाकी वज़ीर रियाज हुसैन पीरज़ादा ने ईवान को बताया कि आलमी सतह पर पाकिस्तान ने बहुत से मुआहदों पर दस्तखत किए हैं जिन पर हम अमल दरामद करने की भरपूर कोशिश करते हैं।
انسانی حقوق کے حوالے سے یورپ کے دوہرے معیار ہیں، پاکستان پر تو اعتراض کرتے نہیں تھکتے، مگر کشمیر فلسطین کے بارے میں کبھی خیال آتا ہے۔ اجلاس میں سابق رکن اسمبلی شہادت خان، ڈاکٹر فضل چودھری کے بیٹے، سیکیورٹی فورسز کے شہید جوانوں اور اسلام آباد میں موسلادھار بارش کے نتیجے میں دیوار گرنے کے واقعات میں جاں بحق ہونے والے مزدوروں کے لیے دعا کی گئی۔ حکومت کی مثبت معاشی پالیسیوں کے باعث اسٹاک ایکسچینج میں تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ کاروباری دن کے آغاز سے ہی 100 انڈیکس میں مثبت رجحان رہا۔ مارکیٹ میں 45,398 پوائنٹس پر بند ہوئی۔ تفصیل بتائیں گے حسن ناصر صدیقی۔ کاروباری دن کی خاص بات اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹرڈ کمپنیوں کے شیئرز کی تعداد میں بڑا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ بازار حصص میں 227 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ، 90 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی، جبکہ 27 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ بازار حصص میں 1,39,721 شیئرز کا کاروبار ہوا، جس کا حجم 46,42,26,000 روپے سے زیادہ تھا، جبکہ مجموعی طور پر ان حصص کی مالیت 10,10,46,00,000 روپے سے زیادہ تھی۔ آج سب سے زیادہ اضافہ آٹو موبائل اسمبلز، آٹو موبائل پارٹس، سیمنٹ اور کیمیکلز کے شعبے سے تعلق رکھنے والی کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں ہوا۔ حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ خارجہ امور کی وزیر مملکت ہنا ربانی کھر سے شام کے سفیر نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات اور امن و سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں پاکستانی زائرین کے لیے سہولیات کی فراہمی اور عوامی رابطوں کے فروغ پر بھی گفتگو ہوئی۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے بھارتی جیل میں قید کشمیری حریت پسند رہنما یاسین ملک کی 11 سالہ بیٹی رضیہ سلطانہ نے کہا کہ ان کے والد کی زندگی کو خطرہ ہے، عالمی ادارے ان کی رہائی کے لیے کردار ادا کریں۔ عدیل احمد خان کی رپورٹ دیکھیے۔ معروف آزادی پسند کشمیری رہنما یاسین ملک کی 11 سالہ بیٹی رضیہ سلطان آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں پہنچی تو ایوان میں موجود اراکین اسمبلی نے بھرپور خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر اسپیکر اسمبلی چودھری لطیف اکبر نے کہا کہ بھارت میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، ایسے میں مودی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ رضیہ سلطان نے کہا کہ یاسین ملک مزاحمت کی علامت ہیں۔ میں اقوام متحدہ سمیت عالمی اداروں سے کہنا چاہتی ہوں کہ یاسین ملک کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں۔ My father Yasin Malik, representing all Kashmiris, has been struggling against Indian illegal occupation, human rights violations, that the Prime Minister Modi has shackled my father in a cell where he is sentenced to death. Yasin Malik, who sacrificed everything, including health, family, wealth, for the sole purpose of freedom for Kashmir. He stands as a symbol of resistance against a mighty army. انہوں نے کہا کہ جب میں 3 سال کی تھی تو اپنے والد سے ملی تھی۔ I have now turned 11. I miss my father like anything. I crave to hear his voice. I would like to take this moment to send a message to Prime Minister Modi from Muzaffarabad, Azad Kashmir, that my father is a beacon of light for the cause of Kashmir. رضیہ سلطان نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی ساری زندگی تحریک آزادی کشمیر کے لیے وقف کرنے کے عزم کا اظہار بھی کیا۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اجلاس میں منظور کی گئی قراردادوں میں مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی افواج کی جانب سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں، مقبوضہ کشمیر میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے اقدامات اور انسانیت سوز مظالم کی شدید مذمت کی گئی۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فورسز اور بدنام زمانہ تحقیقاتی اداروں نے محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کے دوران 20 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوجیوں، سینٹرل ریزرو پولیس فورس، پولیس اور NIA کے اہلکاروں نے نوجوانوں کو سری نگر، اسلام آباد، پلوامہ، شوپیاں، کلگام، راجوری، پونچھ اور کٹھوعہ اضلاع سے گرفتار کیا۔ سول سوسائٹی کے ارکان اور سیاسی ماہرین نے سری نگر میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ علاقے میں 10 لاکھ سے زیادہ بھارتی فوجیوں کی تعیناتی نے وادی کشمیر کو ایک بڑی جیل میں تبدیل کر دیا ہے۔ انجمن اوقاف جامعہ مسجد سری نگر نے ایک بیان میں مسلمانوں کو نئے اسلامی سال کے آغاز پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے تنظیم کے غیر قانونی طور پر گھر میں نظر بند سربراہ میر واعظ عمر فاروق کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ رکن بھارتی پارلیمنٹ حسنین مسعودی اور کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ کے سینئر رہنما محمد یوسف جو قانون ہے اس کے اندر اس کو انکلوڈ کیا جا رہا ہے، اور اس میں اس کی زد میں پاکستان کے شہری بھی آتے ہیں، کیونکہ چینلز کے اوپر خبریں چل جاتی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے اس کی شقوں میں جاؤں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو قانون بنایا گیا ہے، یہ جو ڈیفینیشن بنائی گئی ہے، اس کے اندر جوائنٹ ایکشن کمیٹی یہ اپریل 2023
2022 में इस पे काम शुरू हुआ था, पिछले साल जब ये गवर्नमेंट आई थी। और इसके अंदर जो मालकान है जिनकी एसोसिएशन पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन PBA, PFUJ जो कि जर्नलिस्ट को और वर्किंग जर्नलिस्ट को रिप्रेजेंट करती है, इसके साथ साथ CPNE जो एडिटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बाद जो अमेंड है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर, और इन सब ने मिलकर ये कानून बनाया है। तो इसके अंदर सारी कंसल्टेशन 1 साल के अरसे में इसके अंदर इंक्लूड हुई हैं। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा बिल था जिसकी ज़रूरत थी। और इसके अंदर जो लॉ मिनिस्ट्री है उसने बहुत क्रिटिकल, लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने बड़ा इसमें रोल प्ले किया, जो प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन थी। और मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है उसको भी, और आपको, क्योंकि आपके स्टाफ ने इसको पेश किया, मैं इन सब को इनका शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ। इसमें जी जो सबसे बड़ा बात है कि पेम्ब्रा के 9 सेक्शंस के अंदर अमेंडमेंट है और 5 सेक्शंस जो हैं वो ऐड किए जा रहे हैं, जिसमें पहली दफ़ा पेम्ब्रा के अंदर जो कंटेंट है उसमें चिल्ड्रन कंटेंट को ऐड किया गया है, उसमें टॉलरेंस को ऐड किया गया, इकोनॉमिक और एनर्जी के कंटेंट को ऐड किया गया है। और इसके अंदर जो सेक्शन 20 है उसमें स्पीकर साहब आपको सुनकर खुशी होगी कि ITNE एक न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज़ के लिए जो इम्प्लीमेंटेशन ट्राइब्यूनल फॉर न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज़ है, उसके लिए अगर कभी भी कोई एम्प्लॉइज़ रिलेटेड राइट्स या उनकी तनख्वाहों की बात आती थी तो न्यूज़पेपर की हद तक कानून इसको कवर करता था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो एम्प्लॉइज़ हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, वो कानून इसको कवर नहीं करता था। इस पेम्ब्रा की अमेंडमेंट में इसको, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके अंदर अगर 60 डेज़ के अंदर तमाम ड्यूज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो चैनल है वो एम्प्लॉइज़ की तनख्वाहें नहीं देगा तो गवर्नमेंट अब कानून के मुताबिक उनको गवर्नमेंट बिजनेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट नहीं देगी। इसके साथ साथ जो रिप्रेजेंटेशन है वो पेम्ब्रा अथॉरिटी के अंदर पहली दफ़ा जो PBA है ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन, और इसके साथ साथ जो PFUJ है जो वर्किंग जर्नलिस्ट और जर्नलिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको नुमाइंदगी दी जा रही है। इसके साथ साथ जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके पास कंप्लेंट दर्ज कराने का काउंसिल ऑफ कंप्लेंट ऑफ पेम्ब्रा के अंदर इख्तियार दे दिया गया है, और उसके अंदर वो अपनी सैलरीज़ के बारे में और अपने राइट्स के बारे में पेम्ब्रा काउंसिल ऑफ कंप्लेंट के अंदर अब अपना कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। और उसके साथ साथ ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इसके अंदर भी PFUJ को और मीडिया रिप्रेजेंटेटिव को जगह जो है वो काउंसिल ऑफ कंप्लेंट में दे दी गई है। और इसके साथ साथ जो अगेन PBA है उसको भी इसके अंदर नुमाइंदगी दी गई है। उसके बाद जी जो सेक्शन 26 है, आपको याद होगा स्पीकर साहब कि पिछले 4 साल में जो वज़ीर आज़म थे उनको इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक मीडिया प्रेडेटर कहा जाता था, और सहाफ़ियों के पेट में गोलियां लगती थीं, उनको घरों के जो सहाफ़ी थे उनको बच्चियों के स्कूल के बाहर से अगवा किया जाता था, पसलियां तोड़ी जाती थी, नाक की हड्डियां तोड़ी जाती थीं, चलते प्रोग्राम्स बंद किए जाते थे, और कलम तोड़कर जिस तरह इरफान सदीकी साहब को जेल में डाल के, और लंबी फहरिस्त है कि किस तरह मीडिया के ऊपर उनको दबाकर, उनको सेंसर कर कर, उनको एज अ टूल एडवर्टिजमेंट का इस्तेमाल करके जो जर्नलिस्ट थे और जो मीडिया वर्कर्स थे उनकी नौकरियां ख़त्म हुई। और अब ये कानून के मुताबिक अगर आपने किसी प्रोग्राम को बंद करना है अपने कानून की वायलेशन के ऊपर पेम्ब्रा की, या आपने उसको सस्पेंड करना है, तो चेयरमैन पेम्ब्रा जो कि एक खाली इख्तियार रखता था, आर्बिट्री उसके पास एक इख्तियार था और कॉन्सेंट्रेटेड थी पावर, उस इख्तियार को काउंसिल ऑफ कंप्लेंट में दे दिया गया है। और 3 मेंबर कमेटी ये डिसाइड करेगी कि चैनल को सस्पेंड करना है या बैन करना है, और उसके बाद काउंसिल ऑफ कंप्लेंट उसके ऊपर ये डिसीजन लेगी। ये हिस्टोरिक अमेंडमेंट हुई है, और इसके अंदर जो चैनल्स के एक जुम्बिश से, पेन से, जो आपको चैनल पसंद नहीं होता था, जो एंकर पसंद नहीं होता था, उसके चलते प्रोग्राम्स को बंद कर दिया जाता था। तो अब ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर जो है वो चेयरमैन पेम्ब्रा के पास मौजूद नहीं रही। इसी तरह स्पीकर साहब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अथॉरिटी के अंदर विमेन पार्टिसिपेशन बड़ी कम थी, अब बाय लॉ 2 ख़वातीन को इसके अंदर मैंडेटरी पोजीशन दी गई है, और उसके मुताबिक ही वो डिसीजन जो है वो ले सकेंगे। फिर स्पीकर साहब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो कंप्लेंट की मैंने जिक्र किया कि जो एम्प्लॉइज़ हैं वो पहली दफ़ा
جو کمپلینٹ ہے وہ درج کرا سکیں گے کاؤنسل آف کمپلین میں. اور جو شہری ہے، پہلے ہوتا یہ تھا کہ اگر میری کمپلین ہے اور میں نے لاہور میں کرائی ہے، پنجاب میں کرائی ہے، تو خیبر پختونخوا یا کراچی سندھ کورٹ سے اس کے اوپر سٹے لے لیا جاتا تھا، سیشن کورٹ سے یا ہائی کورٹ سے. تو ہم نے ایک تو سیشن کورٹ کی لیئر نکال کے ڈائریکٹ اس کو ہائی کورٹ کے لیول کے اوپر لے آئیں تاکہ زیادہ افیکٹو طریقے سے پیمرا کا قانون جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو سکے. اور ڈس انفارمیشن، اسپیکر صاحب، یہ ایک فیک نیوز کا جو معاملہ ہے یہ پوری دنیا کا معاملہ ہے، اور اس میں خاص طور پہ میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے منسٹری کے ساتھ مل کر یہ قانون بنایا. آپ کو یاد ہوگا پچھلے دور میں PMDA بن رہی تھی اور آپ سمیت ہم نے پارلیمنٹ کے باہر دھرنا کیا تھا کہ یہ جو سینسرشپ کے اوپر ڈیولپمنٹ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی جا رہی ہے یہ کالا قانون ہے اور اس کو پاس نہیں ہونے دیا تھا. اسی طرح اس فیک نیوز کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو پیمرا کے اندر انکلوڈ کیا گیا ہے، جس میں میں آپ کے اجازت سے اس کو پڑھنا چاہوں گی. یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور کرٹیکل ڈیفینیشن ہے جس کو پہلی دفعہ قانون کا حصہ بنایا جا رہا ہے، اور ہم نے خالی فیک نیوز کی امبریلا میں اس کو نہیں ڈالا. یہ نہ ہو کہ کل کوئی بھی اس قانون کو استعمال کرتے ہوئے کسی کو بھی سینسر کرنے کے لیے استعمال کیا جائے. تو ہم نے اس میں تفریق کر کے مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کے اندر اس کو ڈیوائڈ کر کے اور اس کی اندر ڈفرینشیٹ کر کے ڈس انفارمیشن مینس ویریفائبل فالس misleading, manipulated, created or fabricated information which is disseminated or shared with the intention to cause harm to the reputation of or to harass any person for political, personal or financial interest or gains without making an effort to get other person's point of view or not giving it proper coverage and space but does not include misinformation. Misinformation means verifiable false content or information that is unintentionally disseminated or shared. تو یہ جو ہے قانون، اور اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ تمام سٹیک ہولڈرز نے اس کے اوپر مشاورت کے ساتھ اس ڈیفینیشن کو سائن آف کیا ہے اور اس قانون کا حصہ بنایا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 4 سال میں آپ سمیت اس ایوان کا کوئی ایسا فرد، کوئی ایسا، اور شہریوں تک، چاہے وہ کارپوریٹ سیکٹر ہو، چاہے وہ میڈیا کے لوگ ہوں، چاہے وہ پارلیمنٹ کے لوگ ہوں، عام شہری کو بھی ڈی فیم کر کے، پگڑیاں اچھال کے، ان کی تضحیق کر کے، ان کے اوپر الزامات لگا کر پیش کیا جاتا تھا. لیکن میں میڈیا کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کی امپورٹنس سمجھتے ہوئے اس کو انکلوڈ کیا ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان PBA جو ہے اور مینٹ جو ہے اور PFUJ ہے، UJ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ممبرز تھے جنہوں نے اس قانون کے اوپر بحث کی اور اس کو فائنل شکل دی ہے. اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے آج اس کو ٹیبل کر کے اور نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر آپ اس کو ریفر کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو منسٹر انفارمیشن. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہی تھیں. پیمرا ترمیمی بل 2023 کے حوالے سے وہ آگاہ کر رہی تھیں، اور اس بل میں کانٹینٹ شامل کرنے کے حوالے سے تمام سٹیک ہولڈرز کی جانب سے مختلف تجاویز شامل کرنے کے حوالے سے انہوں نے ہاؤس کو آگاہ کیا. اس کے ساتھ ساتھ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کے تدارک کے لیے کیے جانے والے قانونی اقدامات کے حوالے سے بھی انہوں نے ہاؤس کو آگاہ کیا. شامل کریں گے موسم کا احوال. السلام علیکم ناظرین، موسم کی تازہ ترین صورتحال لیے میں ہوں آپ کے ساتھ قاسم علی. ناظرین آپ کو بتائیں کہ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں بارش کا سلسلہ آج بھی جاری رہا. باران رحمت اور دریاؤں کی صورتحال کے حوالے سے دیکھتے ہیں وردہ سلیم کی یہ رپورٹ. صوبائی دارالحکومت لاہور میں آج مختلف مقامات پر وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری رہا. مال روڈ، ڈیوس روڈ، کینال روڈ، ہربنس پور اور دیگر علاقوں میں بھی بوندا باندی ہوتی رہی. واسا اور ضلعی انتظامیہ کے اداروں نے بروقت اقدامات سے پانی کے نکاس کو یقینی بنایا. پنجاب کے مختلف شہروں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش ریکارڈ کی گئی. درائے چناب میں قادرآباد بیراج کے مقام پر پانی کی آمد 2,03,000 کیوسک اور اخراج 1,85,000 کیوسک پانی گزر رہا ہے. ہیٹ مرالہ کے مقام
पर पानी की आमद 1,31,000 क्यूसिक और अखराज 1,13,000 क्यूसिक है, जबकि दराय रावी में जसर के मुकाम पर 66,000 क्यूसिक पानी गुजर रहा है। दराय रावी और चनाब में तगयानी के खदशे पर DGPDMA ने मुंसलिक इजला के डिप्टी कमिश्नर्स को पेशगी इंतजामात मुकम्मल करने का हुक्म देते हुए एमरजेंसी कंट्रोल रूम में स्टाफ को हमा वक्त अलर्ट रहने की हदायत जारी की। PDMA के मुताबिक जिला नारोवाल में सैलाबी इलाकों से 102 अफराद को रेस्क्यू किया गया। वरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान कश्मीर, इस्लामाबाद, खित्ता पठवार समेत पंजाब, शिमाल मशरकी और जनूबी बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में आंधी, तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान कश्मीर, शिमाल मशरकी पंजाब, खित्ता पठवार, इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और मशरकी सिंध में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की तवक्को है। मुतवक्के मूसलाधार बारिश के बायस इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला और लाहौर में नशेबी इलाके ज़ेर आबाने, जबकि मरी, गलियात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। डेरा गाजी खान और उससे मुल्हिका बलूचिस्तान के बरसाती नदी नालों में भी तुग़यानी का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। और नाज़रीन, अब आपको मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील से आगाह करते हुए बताएं कि दालबंदीन में 45, नौकुंडी 44, सिब्बी में भी 44, मुल्तान 37, जबकि मुजफ्फराबाद में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मुल्क के चंद अहम शहरों में रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील कुछ ऐसे रही। इस्लामाबाद में 34, लाहौर 37, कराची में 36 डिग्री सेंटीग्रेड, पेशावर में भी 36, जबकि कोयटा में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही। खेलों की खबरों में खुशामदीद। स्पोर्ट्स बुलेटिन में बात करते हैं पाकिस्तान श्रीलंका टेस्ट सीरीज के हवाले से। गोल क्रिकेट टेस्ट में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 4 विकेटों से शिकस्त देकर 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। टेस्ट के आखिरी रोज पाकिस्तान ने 131 रन का हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। कप्तान बाबर आजम 24 रन बनाकर LBW आउट हुए। सऊद शकील ने 30, सरफराज अहमद ने 1 रन बनाया। इमामुल हक 50 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे। श्रीलंका ने पहली इनिंग्स में 312, दूसरी इनिंग्स में 279 रन बनाए। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 461 रन बनाए थे। डबल सेंचुरी बनाने वाले सऊद शकील प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। दूसरा और आखिरी टेस्ट 24 जुलाई से कोलंबो में खेला जाएगा। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पे बराह रास्त दिखाई जा रही है। पाकिस्तानी खातून कोह पैमा नाइला कयानी ने तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान में मौजूद 8000 मीटर से बुलंद तमाम 5 चोटियां सर करने का एजाज़ हासिल कर लिया। नाइला कयानी ने 8051 मीटर बुलंद ब्रॉड पीक को सर कर लिया। ब्रॉड पीक दुनिया की 12वीं बुलंद चोटी है। नाइला कयानी पाकिस्तान में मौजूद तमाम 8000 मीटर से बुलंद 5 चोटियां सर करने वाली पाकिस्तानी खातून हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने नाइला कयानी को इस बड़ी कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। कौमी कोहपैमा साजिद सदपारा ने पोर्टस सपोर्ट और मसनूई ऑक्सीजन के बगैर 8051 मीटर बुलंद ब्रॉड पीक को सर कर लिया। साजिद सदपारा ने बगैर मसनूई ऑक्सीजन के अपने कैरियर में 8000 मीटर से बुलंद 8वीं चोटी सर की है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए BTV न्यूज़।